Good afternoon, children. Today in this video we are going to discuss about ethers. Ethers have this functional group. So two valencies are there to be satisfied, and it can be satisfied by alkyl group. The two alkyl groups, if it is same, then it is called symmetrical ether. And if the two alkyl groups are different, then it is called unsymmetrical ether. And if there is a benzene ring attached, then these ethers are called phenolic ether. Ethers are basically used as solvent. Their reactivity is very less, and they are generally used as solvent. So first of all, let us see how are ethers prepared. Preparation of ethers. Preparation of ethers. Now, one method is from alcohols. हम अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं. जैसे अगर ये अल्कोहल जो इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल in presence of concentrated sulfuric acid, इसको 413 Kelvin temperature में we will get this compound CH3OCH3. ये जो कि सिमेट्रिकल ईथर है, ये हमको मिल जाएगा. एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इन दिस reaction what happens is two molecules of alcohol are involved, and there is loss of water. From the two molecules there is loss of water. We will be discussing the mechanism. Or for example, say if we have CH3, CH2, if we take ethyl alcohol under the same condition, what will happen is we will get OCH2 CH3 plus water. Here also two molecules will be involved. Now let us discuss here the naming of ether also. Like this ether, common name, it is called dimethyl ether. Dimethyl ether, common name, and its IPC name is methoxy methane. Methoxy is methoxy, and one carbon atom chain, methoxymethane. This ether, common name diethyl ether, and its IPC name it is ethoxy and two carbon atom chain, ethoxyethane. Now suppose if there is a unsymmetrical ether, how to name it? Say this one, CH3O CH2 CH3. Now according to the rule, a smaller alkyl group
it has to be alkoxy, smaller alkali. So its name will be methoxyethane. 2 carbon atom change, ethane. So methoxyethane. And common name of this compound is this is ethyl. This is methyl. Ethyl, alphabetically ethyl comes first. So ethyl, methyl, ether, commonly. Okay. Now this method is as you can see it is for symmetrical ether, for the preparation of symmetrical ether. By this method we cannot prepare unsymmetrical ether. By this method we cannot prepare unsymmetrical ether. We can prepare symmetrical ether by this method. Now let us discuss the mechanism. What mechanism is involved here? So let us do with this one. इससे हम लोग करते हैं mechanism. तो CH3OH ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं. First step is protonation. फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. ये जो एसिड से प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाएगा. So first step is protonation. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन के चारों ओर 5 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5. नॉर्मली ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 5 है. सो इट इज प्लस. So this is the first step. And second step, in the second step what happens is second molecule of alcohol second molecule of alcohol second molecule of alcohol will act as nucleophile. This molecule of alcohol will act as nucleophile. It will act as a nucleophile, and this nucleophilic attack will be SN2 attack. SN2 attack. So due to SN2 attack, what will happen is this will act as nucleophile. It will attack here, and simultaneously this bond will break. This will attack. This bond will break. So there will be loss of water, and so what will happen is CH3 O here H. So it is getting bonded with this CH3. Simultaneously there is loss of water, and this oxygen will be plus. So this is the second step. And in the third step, what will happen is there will be loss of proton. Proton चले जाएगा यहाँ से. Proton क्यों जाएगा? क्योंकि ये O plus है, ये बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, और ये प्रोटॉन H ये जो है ये H प्लस होकर बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप के लिए, तो एक प्रोटॉन निकल जाएगा, एंड वी विल गेट CH3O CH3.
this ether we will get. So this is the mechanism of formation of ether from alcohol. So this method it is for preparation of symmetrical ether. Now suppose a question arises here. एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि क्या इस मेथड से हम ये ईथर बना सकते हैं? Can we prepare this ether by this method? देखो ये ईथर सिमेट्रिकल ईथर है, तो ये ईथर क्या इससे हम बना सकते हैं? आंसर होगा इसका नो. We cannot prepare this ether by this method. The reason is that ये बनाने के लिए हमको जो अल्कोहल जो लेना पड़ेगा, you can see जो अल्कोहल हमको लेना पड़ेगा which is CH3C CH3 CH3OH, ये अल्कोहल हमको लेना पड़ेगा. अभी देखो ये जो अल्कोहल है ये 3 डिग्री अल्कोहल है. तुमको पता होना चाहिए, ये पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री कंपाउंड्स का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है. 3 डिग्री अल्कोहल का एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. इसलिए ये कंपाउंड इस मेथड से हम नहीं बना सकते. तो अभी हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है, जिससे हम अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, जिससे हम ऐसा टाइप का ईथर भी बना सकते हैं. तो that method is Williamson's तो ये रहा विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस. इसमें क्या होता है, हमको एक हैलो कंपाउंड लेना पड़ता है. हैलो कंपाउंड ये अवश्य ये 1 डिग्री और प्राइमरी होना पड़ेगा. एंड इसको सोडियम या पोटाशियम एल्कोक्साइड, ये RO माइनस, ये एल्कोक्साइड बोलेंगे इसको, एल्कोक्साइड. तो इसका जो कंपाउंड होगा ये Na प्लस O माइनस R, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड. तो ऐसे कंपाउंड लेना पड़ेगा, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड. तो इसमें क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो हमने सर्कल कर रहे हैं, ये दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इसको अटैक करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बाहर आ जाएगा. तो एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा, दूसरा निकल जाएगा. ये SN2 रिएक्शन होगा करके ये हमको RO ये ईथर मिल जाएगा, और साइड प्रोडक्ट जो होगा NaX. ये है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का मेन थिंग. अभी ये एल्कोक्साइड कैसे बनता है, ये सपोज एल्कोक्साइड बनाने के लिए हमको अल्कोहल लेना पड़ेगा. सपोज हम अल्कोहल को ऐसा लिखते हैं, ROH इस अल्कोहल है. तो इसको अगर सोडियम से रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल एंड सोडियम, देन इट विल गिव दिस कंपाउंड अल्कोक्साइड. तो अभी सपोज इसका एक इक्वेशन लिखते हैं. सपोज एक प्राइमरी कंपाउंड, सपोज CH3
CH2Cl ये लेते हैं, और ये एल्कोक्साइड Na प्लस O माइनस, सपोज CH तो ये एल्कोक्साइड, तो क्या होगा, ये SN2 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होकर जो ईथर हमको बनेगा, जो ईथर हमको मिलेगा वो होगा CH3CH2। तो ये जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये CH2 के साथ इसका बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद आएगा CH CH3CH3, तो ये ईथर बनेगा। तो देखो ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर बहुत इजीली बना सकते हैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज ये तुमको ये ईथर तुमको बनाने बोल रहा है, CH3O C CH3CH3CH3। सपोज इस मेथड से यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर दिस ईथर, ये ईथर तुमको बनाना है, तो तुम कौन सा दो कंपाउंड ये यहाँ पे लोगे। तो यहाँ से ये कंपाउंड को देखकर हम पता कर सकते हैं हेलो कंपाउंड कौन लेना है और एल्कोक्साइड कौन सा लेना है। तो यहाँ पे हेलो कंपाउंड हमको लेना है, ये लेना है CH3Cl, ये लेना है हेलो कंपाउंड, और जो एल्कोक्साइड लेना है वो होगा ऐसे Na प्लस O माइनस, ये Na प्लस और O माइनस के बीच आयनिक बॉन्डिंग होता है, फिर ये CH3CH3CH3। तो ये दो कंपाउंड का रिएक्शन करने से हमको ये ईथर मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे तुम सपोज ऐसे सोच रहे हो कि हम अगर ऐसे लेते हैं, तो अगर हम ये कंपाउंड लेते हैं तो क्या होगा, ये हेलो कंपाउंड अगर हम लेते हैं और जो एल्कोक्साइड है सपोज हम ये हेलो कंपाउंड लेते हैं और ये एल्कोक्साइड लेते हैं, इसको बनाने के लिए देखने में लग सकता है कि इससे भी बन जाएगा, तो क्या सचमुच ये दोनों को रिएक्शन करने से ये ईथर मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा। We cannot prepare this ether by reacting this and this, as already has been said। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये जो हेलो कंपाउंड जो लेना है वो 1 डिग्री होना चाहिए। ये जो हेलो कंपाउंड है ये 1 डिग्री नहीं है, ये 3 डिग्री है, तो ये ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन इनका रिएक्शन होगा, तो ये अगर हम लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, इधर क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि 3 डिग्री कंपाउंड का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा एलिमिनेशन, ये जो CH3 है इसको अगर हम ऐसे करके लिखते हैं ये CH3 बार, तो ये क्या होता है, ये H और ये Cl, ये जो एसिड है ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अभी ये जो कंपाउंड है ये बेस का रोल प्ले करेगा। दिस सोडियम इथॉक्साइड, ये जो कंपाउंड है, इट विल एक्ट एज ए बेस, तो ये HCl को हटा देगा, ये HCl को हटाने में हेल्प करेगा ये बेस, और ये हट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा।
तो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा हमको CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम ये ईथर बनाने के लिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड लेते हैं तो नहीं बनेगा, उसके जगह पे हमको एल्कीन मिल जाएगा एलिमिनेशन होकर। तो ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आता है पर्टिकुलर ईथर बनाने के लिए। तुम हाउ विल यू प्रिपेयर इट। मैं दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। सो सपोज ये अगर हमको ये ईथर बनाना है, ये फेनोलिक ईथर है, ये फेनोलिक ईथर है। इसका मैं बता देता हूँ, इसका कॉमन नेम है फेनिटोल। फेनिटोल ये इसका कॉमन नेम है। जैसे ये ईथर भी तुमको याद रखना चाहिए, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है एनिसोल। तो एनिसोल जिसको हम IUPAC में मिथॉक्सीबेंजीन भी बोल सकते हैं। फेनिटोल इसका IUPAC नेम इथॉक्सीबेंजीन भी बोल सकते हैं। सो सपोज हाउ विल यू प्रिपेयर इथॉक्सीबेंजीन बाय विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो हमको ये हेलो कंपाउंड यहाँ पे लेना पड़ेगा CH3 CH2Cl, ये हेलो कंपाउंड, और जो एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा ये है O-, ये एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा। तो हमको ये मिल जाएगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। अभी जैसे अगर हम कोई अगर बाई चांस ये लेते हैं, सपोज ये अगर हेलो कंपाउंड लेते हैं और अगर ऐसा एल्कोक्साइड लिया जाता है, ऐसा एल्कोक्साइड, और ये तो ये हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये कारण अच्छी तरह समझना है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है ना। क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है, ऐसे करके बहुत सारा स्ट्रक्चर मिलता है, और रेजोनेंस के कारण ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक डबल बॉन्ड जैसे बन जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण ऐसे करके रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण ये ईथर बनाने के लिए हम ऐसा नहीं लेंगे, हम ऐसे लेंगे। तो सेम कारण से जैसे ये ईथर हम इस मेथड से हम नहीं बना सकते। इस मेथड से हम ये ईथर हम नहीं बना सकते, हमको दूसरा कोई मेथड है जिससे हम ये बना सकते। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करूँगा। प्रॉपर्टीज जैसे अगर हम सपोज बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में सपोज हम बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं। सपोज ये हमने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे हमने ये ईथर ले लिया, एक ईथर ले लिया, और यहाँ पे सपोज हमने एक अल्कोहल ले लिया। तो ये क्या होता है कि
अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा होता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होता है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इसका कारण है कि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से या हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये तुमको पता है, मैं थोड़ा फिर बना देता हूँ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये CH3OH, ये CH3OH, CH3OH, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अभी ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो डाइपोल जो फोर्स है, वो इससे स्ट्रॉन्ग। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ईथर का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई ईथर्स आर मेनली यूज्ड एज सॉल्वेंट। लेकिन एक दो केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक। बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।